प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। जय। सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। सब अपना हमारे वैष्णव प्रणाम एक्सेप्ट करिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। So, dear devotees, Krishna consciousness is unlimited. We have unlimited service, and there is always a scope for improvement. We can always refine our skills and for the best of our service so that we can improve in services and we can please Krishna. So, this is our new venture. We are starting with our creative class, and we can learn together unlimited new skills for the service of Sri Sri Radha Sham Sundar. Like we can learn how to bake cakes, and we can learn how to decorate the cakes, muffins, and cheesecakes and so many new dishes which we didn't knew earlier. And we can please Krishna, we can please Guru Maharaj, we can please all the devotees by serving such sumptuous, yummy prasadam. And we can learn how to make rangoli, we can learn how to design dresses for the deities, we can learn how to offer new turban styles for the deities. We can learn how to make the backdrops. We can learn how to make wall hangings for festival times to decorate the backdrop and also to decorate our temples. So there are unlimited services, and Krishna is unlimited, and therefore the services are also unlimited. And today we are going to start with our first bakery session. We are going to learn to how to bake a simple vanilla sponge cake. And afterwards, slowly and slowly, step by step, we will be learning different kind of variations. We will be also learning icing, piping, decorating the cakes in different ways, making one tier, two tier, three tier cakes. So we will be learning all the details in future. Now let us start with our first bakery session, how to bake a cake. And we welcome our very talented Mataji, Shivani Mataji. Shivani Mataji, where are you? Hare Krishna Mataji, am I not audible? Yes, you are audible. Yes. Hmm. Okay, so we welcome Shivani Mataji by chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare हरे Ram, राम Ram. हरे राम राम हरे हरे। Please accept our Vaishnav pranams. Vancha kalpatrupcha kripa sindhu patitanam pavnebhyo वैष्णव। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हमारी शिवानी माता जी की जय। So Shivani Mataji is a very talented Mataji, and she is aspiring disciple of His Holiness Indradyumna Swami Maharaj, and she's serving in east of Kailash DT Kitchen from last 2 years, and now she is very kindly accepted our request to teach us the entire baking and also multi cuisine cooking. So let us start with our first session. Over to you, Shivani Mataji. All the best. Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much, Krishna Mataji. I'm actually very scared before telling you because it's my first time भी giving आप such हिंदी a. में बात कर सकते हो, सब हिंदी में करेंगे। वो तो मुझे आदत पड़ गई यहाँ रहकर, सॉरी। मुझे इंग्लिश हिंदी में करनी थी, पर अभी आई रियलाइज कि मैंने इंग्लिश में ही बात कर दी। तो आप हिंदी में हाँ, बात कर सकते हैं, ठीक है। जी। मैं बहुत ज्यादा ही डरी हुई हूँ क्योंकि और मैं पिछले 1 घंटे से बहुत ज्यादा पैनिक कर रही हूँ कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा मैं कभी इधर भाग रही हूँ कभी उधर भाग रही हूँ बट मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि थ्रू निष्ठावती माता जी मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कुछ सर्विस कर सकूँ। मुझे इतना कुछ तो नहीं आता है जितना भी आता है आई ट्राई टू टीच एवरीवन एंड आई ट्राई टू लर्न आल्सो। मैं पहली बार मैंने खुद ये केक एज सच मेरे पास ओवन नहीं है बट आई मेड इट इन
मैंने कढ़ाई भी बनाया और वो आया परफेक्टली, लाइक इट केम, अच्छे से निकल के आया वो। तो इट्स कॉज ऑफ मिस्टर भक्ति माता जी। मैं दिल्ली से हूँ एंड आई एम 20 ईयर्स, मैं 20 साल की हूँ। और मैं ईस्ट ऑफ कैलाश में दीदी किचन में मैं सर्विस करती हूँ 2 साल से। मैं इनिशिएटेड नहीं हूँ बट मेरे पर बहुत कृपा है वहाँ के भक्तों की, जिनकी वजह से मैं वो सर्विस कर पाती हूँ। मैं कुछ कुकिंग नहीं करती हूँ लाइक एज सच, बट मैं प्रिपरेशंस बहुत करती हूँ वहाँ की चीज़ों के लिए। हम राजभोग में हमारी सेवा होती है एंड आई बेक ऑल्सो वहाँ पे। मैं मेरी बेकिंग की जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी। मेरे को हमेशा से सीखना था कि कैसे हम केक बेक कर सकते हैं कैसे, क्योंकि लास्ट टाइम निष्ठा भक्ति माता जी यही बोल रही थी कि इंडियंस में जो होता है हमारे में बेकिंग बहुत कम होता है। हमारे में पकवान बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं बट हमारे पास बेकिंग मतलब बहुत हम कम वो कर पाते हैं। बट समहाउ वो चीज इस्कॉन के थ्रू हमारा बैरियर हट जाता है, कि हमारे प्रभुपाद ने इतनी सारी चीजें हमें दी एंड उसके थ्रू भी वी गॉट टू नो कि हम बेकिंग कैसे कर सकते हैं। हम अभी एक सिंपल वनीला स्पॉन्ज केक से स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है ये रेसिपी। ये रेसिपी हम हमारे डीडी किचन की कुछ रेसिपीज अलग होती हैं और आई विल रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि ये रेसिपीज आप मतलब सबको मत शेयर करिएगा। वैसे कर सकते हैं लेकिन मतलब एज सच जैसे होता है कि किसी को भी ऐसे मत बताइएगा, क्योंकि ऐसे अलाउड नहीं होता है। बट मैंने माता जी से स्पेशली परमिशन लिया तो उन्होंने बोला हाँ हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि भक्तों के लिए सीखने के लिए। मैं अभी आपको इंग्रेडिएंट्स लिस्ट करूंगी। हमारे पास पहला इंग्रेडिएंट इज मैदा, दैट इज आवर फ्लावर, लाइक दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट। और मैदा की सब्स्टिट्यूट्स भी मैं आपको स्लोली एंड स्लोली इन दी एंड बताऊंगी कि हम मैदा के अलावा और क्या क्या चीज कर सकते हैं। बट अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैदा के बाद हम ऑयल ले सकते हैं या फिर बटर। ऑयल या बटर बोथ विल वर्क। रिमेम्बर कि हम मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज कर सकते हैं। या तो हम ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं या नॉर्मल ऑयल, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल जो हम घर में यूज करते हैं, या फिर बटर। बटर डिपेंड करता है कि आपको केक थोड़ा सॉल्टी चाहिए तो आप सॉल्टेड बटर भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल बटर इज बेस्ट। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट इज हमारा बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा नहीं है तो हम इनो भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम वी कैन यूज इनो ऑल्सो, उससे भी सेम रिजल्ट आता है। बट बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जैसे बहुत, जैसे बड़े केक में अगर आपको 2 टायर या 3 टायर का बनाना हो तो सजेस्ट किया जाता है कि हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा पे स्टिक रहे। एंड देन वनीला एसेंस। ये एसेंस होता है, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। अब एसेंस में भी बहुत तरीके के एसेंस होते हैं। वनीला होता है, एक बटर स्कॉच एसेंस होता है, रोज इज ऑल्सो देयर। ये बेसिकली किस काम आता है कि आपके केक में एक फ्लेवर आ जाता है और एक अलग सी बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, बहुत अच्छा सा अरोमा आता है। आफ्टर दैट हम शुगर लेंगे। अब वी कैन यूज हम ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ब्राउन शुगर यूज करोगे तो आपका केक ब्राउनिश बनेगा, और अगर आप व्हाइट शुगर यूज करोगे तो आपका केक व्हाइट बनेगा, मतलब उसका जो बैटर है व्हाइट बनेगा। और व्हाइट शुगर का यूज करने का एक अच्छा एडवांटेज ये होता है कि लेट्स सपोज कि अगर मुझे कुछ कलरफुल केक बनाने हैं, लेट्स सपोज कि अगर मैं रेड वेलवेट केक बनाना चाहती हूँ, या फिर अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा केक ग्रीन कलर का हो उसका स्पॉन्ज, तो अगर मैं केक में व्हाइट शुगर यूज करूंगी तो वो कलर बहुत अच्छे से निकल के आएगा। लेकिन अगर मैं गुड़ या फिर ब्राउन शुगर यूज करूंगी तो वो उतना केक नहीं आता, क्योंकि जो ब्राउन शुगर होता है वो बहुत पावरफुल हो जाता है व्हाइट शुगर के सामने, तो इसीलिए वैसा हमारे पास नहीं आता। देन हमारे पास दही भी है और हमारे पास दूध भी है। एंड इफ दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, अगर आप कस्टर्ड डालना है कि नहीं डालना। आई प्रिफर कि मैं कस्टर्ड डालूं, क्योंकि अगेन इससे थोड़ा अलग सा फ्लेवर आ जाता है। And now we start and we have dry fruits also. अब ये भी ऑप्शनल है। कुछ लोगों को बिना ड्राई फ्रूट्स के पसंद आता है, किसी को ड्राई फ्रूट्स के साथ पसंद आता है। तो हम मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ड्राई फ्रूट्स यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरे को प्लीज माता जी प्लीज कंफर्म नहीं अगर आपको मेरा ये दिख रहा हो, क्योंकि ऐसा दिखेगा। दिख रहा है, we can see it clearly. Mataji, Mataji, just one request. Okay. While हाँ, you're putting the ingredients,
If you could also tell the quantity कि आप किस quantity में वो Yes, ingredient yes. डालें. So Yes. That's not the correct to quantity also. So I'm really sorry, मैं मंगलाचरण करना भूल गई. Let's start with the मंगलाचरण first. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. I actually pray on to all the Vaishnavas to their lotus feet that I may make many mistakes. मैं बहुत सारी गलतियां करूंगी, पर प्लीज मेरे को माफ कर दीजिएगा. फर्स्ट, अब हमारा केक डिपेंड करता है कि हम, जैसे मैं भी आप लोगों को ½ kg का केक का सब कुछ बता रही हूँ. 1 kg जो होगा हम उसकी क्वांटिटी डबल कर लेंगे. ठीक है. तो ½ kg के केक में हमें मतलब 4 चम्मच ऑयल डालना है. आप बटर भी 4 चम्मच डाल सकते हैं, ऑयल भी. यू कैन सी 4 चम्मच है ये ऑयल. 4 चम्मच नॉर्मल किसी भी स्पून से, हमारे घर में जो भी नॉर्मल स्पून है उससे आप 4 चम्मच ऑयल डालेंगे. उसके बाद शुगर. शुगर विल बी ऑल्सो फोर स्पून ओनली. 4 चम्मच ही चीनी डलेगा. कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा पसंद होता है तो वो ज्यादा डालते हैं, पर ये मैं ½ kg के केक का आपको पूरा बता रही हूँ. 4 चम्मच डालने के बाद हम बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे. प्लीज मेरे को बता देना मतलब जी अगर दिख रहा है तो. ठीक है. अच्छे से, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कर दीजिए. इट्स क्लियर माता जी. बाकी लोगों को सब क्लियर दिख रहा है? सबको अच्छा ठीक लग रहा है आवाज और Yes, Mataji. screen? Yes, Mataji. Yes. Yes. ओके ओके, गो अहेड शिवानी. ओके. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर. नाउ यू कैन सी, आपको दिख रहा Mataji, होगा can कि we spotlight? Okay, thank you. yes. Mati, I had a question. This is powdered sugar which yes. you are using, right? सॉरी माता जी, आप कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? I'm asking you're using the powdered sugar, right? यस एक्चुअली माता जी देर आर, हाँ मेरे पास नॉर्मल शुगर था, उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड करा एंड देन आई यूज द पाउडर शुगर. अगर आप नॉर्मल क्रिस्टल वाला शुगर लोगे ना, आपको बहुत ज्यादा मिक्स करना पड़ेगा केकिंग में. द बेस्ट थिंग, जैसे आपका जो केक बनता है वो मिक्सिंग से बनता है. अगर आप जितना अच्छे से मिक्स करोगे उतने अच्छे से आपका आउटकम निकल के आएगा. तो दिस इज पाउडर्ड शुगर ओनली. माता जी उसके बाद जी आपने माता कुछ जी, खाना हरे भी है. कृष्णा. जी माता जी. उसके बाद Can we आपने use उसको the खाना. brown sugar also? Yes, Mataji, we can use brown sugar also. We can use jaggery also. Both Okay, are used. okay. But Fine, remember, Mataji. जब हम जी. जैगरी यूज करते हैं तो उसको मतलब उसको बिल्कुल अच्छे से, या तो आप उसका लिक्विड बना लीजिए जैसे उसकी चाशनी से जो बनती है तार वाली, या तो आप उसको Okay. पूरा मतलब ग्राइंडेड भी आता है ना, घीस के भी आप डालोगे. क्योंकि अगर आप Yes, yes. जैगरी वैसे ही डालोगे तो उसके लम्प्स होंगे जिसकी वजह से केक नहीं अच्छा बनेगा. देयर माता वाज जी वन. इसके बाद यस माता जी. आपने इसको छाना भी है माता थैंक यू जी माता शुगर जी. को. सॉरी माता जी, कैन यू रिपीट अगेन? आपने छाना भी है ग्राइंड करने के बाद. माता जी हाँ, आपके ऊपर डिपेंड होता है. मैंने वैसे छाना नहीं क्योंकि शुगर तो नॉर्मली था मेरे पास, तो मैंने छाना नहीं. ओके माता जी, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. माता जी क्वांटिटी कितनी लेनी है शुगर की? माता जी क्वांटिटी मैं आपको अभी ½ kg का केक का बता रही हूँ. ½ kg के केक में आप 4 बड़े चम्मच, मतलब नॉर्मल जिस चम्मच से हम खाना बनाते हैं, लाइक जो घर में यूज होता है, ये वाले चम्मच से मैंने 4 चम्मच शुगर यूज किया है. अगर आपको थोड़ा मीठा खाना है तो आप और मीठा भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर किसी को कम खाना है तो आप दो दो स्पून डाल सकते हो. देन हम इसके बाद अपना वनीला एसेंस पुट करेंगे. वनीला एसेंस हम 1 चम्मच डालेंगे. मैंने मैंने वैसे पहले डाल दिया था तो वो 1 चम्मच हो ही गया था.
मधु जी, नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि हम दही कितना पुट करते हैं। हमारे स्कॉन में वी यूज दही इंस्टेड ऑफ वाटर, हम वाटर नहीं यूज करते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास 1 किलो केक, मतलब अगर हम 1 किलो का बैटर तैयार कर रहे हैं, तो उसमें जैसे 4 फ्लावर्स डलते हैं, मतलब 4 कटोरी मैदा डलता है। और अगर आप आधा किलो बना रहे हो तो आपके पास 2 कटोरी मैदा डलता है। तो मैं दोनों यूज करती हूँ, दही और दूध दोनों। तो हम हमारे स्कॉन में हम दूध और दही दोनों यूज करते हैं। तो आप अगर हाफ केजी केक बना रहे हैं तो आपको 1 कटोरी दही यूज करना है। और अगर आप 1 केजी बना रहे हैं तो आपको 2 कटोरी दही यूज करना है। दिस इज दही, आई एम पुटिंग दैट। अब यहाँ बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जितना आप हाथ से भी बना सकते हो। जैसे हम, मतलब जब हम डीटी किचन में बनाते हैं तो हम वो एक साथ हम 250-300 केक बनाते हैं, तो हमारे पास बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। तो उसमें ये विस्कर में काम नहीं आता, तो फिर हम हाथ से ही यूज करते हैं। पर डिपेंड करता है आपको कैसा पसंद आएगा। उसके बाद हम डालेंगे हमारा कैन वी कस्टर्ड यूज पाउडर। इलेक्ट्रिक बीटर ऑल्सो? सॉरी माता जी। हम लोग इलेक्ट्रिक बीटर से भी बीट कर सकते हैं। यस माता जी, दैट इज वेरी परफेक्ट। उससे बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आती है। मैटर ये करता है कि कंसिस्टेंसी कैसी है। पर उससे ये तो देन नहीं कि ज्यादा पतला हो जाएगा बैटर? नहीं माता जी, पतला नहीं होगा, उससे ज्यादा पतला नहीं होगा, बट उसको ये नहीं कि बहुत देर तक ही चलाना है। हम्म, वो बस मिक्स। हाँ, जिसकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मैंने अभी कस्टर्ड पाउडर डाला था, 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। हाफ केजी केक में 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, प्लीज रिमेम्बर दिस। कस्टर्ड पाउडर इज टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना तो वो मतलब बिल्कुल ऑप्शनल है। नाउ दिस इज बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम डालेंगे। अब प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर कि जो बेकिंग पाउडर होता है और जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा हाफ डलता है बेकिंग पाउडर का। दिस इज जो मैंने सीखा है। तो हियर आई पुट 1 स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हाफ, इसका हाफ डलेगा। जितना सोडा पाउडर डाला था उसका हाफ। नाउ देयर इज वन वन गुड टिप। जब हम कुकीज बनाते हैं तो हम कुकीज का जो हमारा बैटर होता है वो जैसे आटे जैसा होता है, उसको गूंदना पड़ता है। तो उसके लिए जब हम सोडा और ये पाउडर डालते हैं तो हम एक कंटेनर में पानी डाल के डालते हैं, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो। और जब हम केक बना रहे हैं तो हम ऐसे ही डाल सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी दही दूध एंड एवरीथिंग इज पानी ओनली। मिक्स माता इट। जी, आप प्लीज रिपीट करेंगे? अभी आपने क्या बताया था कि बेकिंग पाउडर कितना डाला है आपने? माता जी, हाफ केजी में बेकिंग पाउडर जो आप डालोगे, आप वो 1 स्पून डालोगे। और जो बेकिंग सोडा होगा वो हाफ होगा हमेशा। थैंक यू। अगर आप लोग को दिख रहा है तो यू कैन सी ये कैसे फर्म, मतलब सोडा और उसके डालने के बाद हाउ इट्स राइजिंग अप, इफ यू कैन सी। पहले बहुत बैठा हुआ था बट नाउ इट्स राइजिंग। नाउ वी पुट, उसके बाद बेकिंग सोडा के बाद, एक सेकेंड बाद इसमें बस। वो आफ्टर बेकिंग सोडा हम अपना अ, मैदा डालेंगे। ये 1 कप, कोई सी भी कटोरी जो नॉर्मल कटोरी होती है उसके हिसाब से आप डाल सकते हो।
then another. ये थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है इसको मिक्स करना। मैंने पहले से ही अपना पूरा मैदा छान के रखा था ताकि कोई लम्स ना आए। अब द चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे क्या होता है कि जब हम मैदा डालते हैं तो हमारा जो बैटर होता है वो बहुत ज्यादा सूख जाता है। आपको दिख रहा होगा ये आटे की तरह हो जाता है। तो इसमें हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कुछ लोग पानी डाल देते हैं, बट हम डीटी किचन में पानी नहीं डालते हैं, वी प्रेफर मिल्क। तो मैं मिल्क डालूंगी एंड आई मिक्स इट। में और मिल्क डालेगा। Sorry, Mataji, can we use regular flour instead of maida? Yes, Mataji, you can use regular flour also, you can use सूजी also, but remember जब आप सूजी डालोगे तो उसका क्या बोलते हैं उसको आप ग्राइंड करना अच्छे से। नॉर्मली अगर आप सूजी Okay. डालोगे ना तो वो बहुत वैसा हो जाएगा, मतलब बन के नहीं निकलेगा। और अगर आपको सूजी को अच्छे से ग्राइंड करना पड़ेगा मिक्सर में देन। हरे कृष्णा माता जी। माता जी यस मिल्क थोड़ा गर्म करना माता जी, नॉर्मल मिल्क। माता जी, नॉर्मल मिल्क ठंडा मिल्क भी डाल सकते हो आप, गर्म मिल्क भी डाल सकते हो, दोनों चलेगा। हमें बस कंसिस्टेंसी अच्छी चाहिए, पानी की जगह हम मिल्क यूज करते हैं। कभी कभी पानी यूज कर सकते हैं पर आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे आप बनाना चाहते हैं। जी माता जी, थैंक यू माता जी। How माताजी, much हाउ milk विल did वी you? नो कि कितना मिल्क डालना है? जी माता जी। माताजी, Milk. मिल्क कितना डालना है? माता जी मिल्क माता जी इसका ना कोई एज सच कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है। आपको मिल्क इतना डालना है कि जो आपका जो बैटर हो वो थोड़ा ज्यादा गाढ़ा ना हो और ना ज्यादा पतला हो। उस हिसाब से आपको मिल्क डालना। अब ये फिर आपके ऊपर डिपेंड कर। फिर जी, माताजी, वो पता कैसे चलेगा कि कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए? वो मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। ओके माताजी, थैंक यू सो मच। और माता जी अभी आपने हाफ केजी के केक में हमने 2 कप मैदा डाला है ना, इज दैट राइट? जी, 2 कप मैदा इज देयर। और अगर हम 1 kg का करेंगे ना तो ये सब डबल हो जाए, 4 कप मैदा होगा फिर। और ऑयल जो है वो मतलब 4 चम्मच के बदले 8 चम्मच ऑयल होगा। बेकिंग सोडा भी डबल डलेगा, बेकिंग पाउडर भी उसका डबल डलेगा। माता जी शुगर कितनी? मात्र शुगर अगेन डबल डलेगा। सबसे चैलेंजिंग पार्ट हमारा केक बनाने का यही होता है कि अगर हमारे पास हैंड बीटर नहीं है तो हमें हाथ से ऐसे पूरा मिक्स करना होता है। और डीटी किचन में हम ऐसे ही मिक्स करते हैं पूरा। माताजी, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर दोनों डालना जरूरी है? माता जी एक्चुअली दोनों का ना अलग कैरेक्टरिस्टिक है। बेकिंग सोडा जो होता है वो किसी लिक्विड के साथ होके वो अपना फर्मेंट मतलब राइज करने के लिए यूज होता है। और बेकिंग सोडा किसी सॉलिड के साथ भी चलता है। आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों डालोगे ना, बेसिकली दोनों का काम जो होता है ना वो केक को राइज करना होता है। अगर सब्स्टिट्यूट आप बेकिंग हाँ, सोडा का? सब्स्टिट्यूट फॉर बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर इज इनो। यू जस्ट पुट 1 पैकेट ऑफ इनो, यू विल सी बहुत अच्छे से राइज होगा वो। 1 पैकेट एंड हाफ केजी? यस, एंड 1 kg में यू हैव टू पुट 2 kg। सेम प्रोसेस हमारा ढोकला बनाने का भी होता है। इसी चीज में जिस जिस तरीके से हम केक बनाते हैं सेम वही होता है। थैंक यू माताजी। आप लोग को दिख रहा है कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है? Yes, Mataji.
राइट। मैं भी एक चीज करके दिखाती हूँ आपको। जब हम कंसिस्टेंसी के लिए हम क्या करते हैं, कोई सा भी आप ये लेना स्पून, आप उसको ना उल्टा करके देखना। अगर बैटर इज स्टेइंग, पीछे रह रहा है, तो इसका मतलब कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अगर बैटर जो है हमारा केक का वो गिर रहा है, तो कंसिस्टेंसी मतलब बहुत ढीली हो गई है। तो हमें ऐसे दिखाना है कि वो स्टे करे इसके। और अगर ज्यादा मोटा होगा तो वो आपको पता चल जाएगा, जब आप हिलाओगे हाथ से तो वो हिलेगा ही। प्लीज रिमेम्बर कि आप जब अपना आटा डालोगे कोई सा भी, हम इसमें आटा भी ले सकते हैं नॉर्मल, सूजी भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं। हम उसको छान के डालें, क्योंकि अगर हम नहीं छानते हैं ना तो बहुत सारे लम्स आ जाते हैं, मतलब बहुत सारी गांठें आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो अंदर ही कच्चा रह जाता है। और जब केक पकता है ना तो वो अलग सी गांठ, सूखा सूखा सा हो जाता है, और उसकी वजह से केक बहुत टाइट बनता है। नाउ इसके अंदर हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वी कैन ऐड एनी कलर, हम कोई सा भी कलर डाल सकते हैं। जैसे किसी को रेड वेलवेट केक बनाना है तो रेड कलर डाल सकता है, रेड फूड कलर। किसी को मान लो पिंक कलर का स्पॉन्ज चाहिए तो वो पिंक कलर डाल सकते हैं। पर वो कलर तभी आएगा जब आप नॉर्मल शुगर यूज करोगे, लेकिन अगर आप ब्राउन शुगर यूज करोगे तो कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर आप जैगरी भी यूज करोगे कलर नहीं आएगा। माता जी अगर खांड यूज करेंगे तो? Maybe khand is brown sugar only. It's just an English version of मतलब ब्राउन शुगर, सॉरी अच्छा, हिंदी वर्जन। हाँ सेम ओके होता है दोनों, ब्राउन शुगर और खांड। ओके ओके, थैंक यू। जी। नाउ आवर बैटर इज रेडी। इसको 5 मिनट 2 मिनट के लिए हमें साइड लाइक हमें रखना पड़ेगा, ताकि वो जो भी सारा है वो एकदम सेटल हो जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस, द केक। दिस इज ½ kg विच आई हैव गॉट। अब इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इतना कि इसकी पूरी जो स्किन है उस पे ये अच्छे से लग जाए। अगर बाय चांस ऑयल ज्यादा डल गया तो आप क्या करोगे, आप ऑयल उसी कंटेनर में दोबारा निकाल सकते हो। और मैंने जान के ज्यादा ऑयल डाला है सो दैट आई कैन शो कि हम ऑयल ऐसे पूरा निकाल सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि नहीं निकाल सकते हैं, वी कैन पुट दी ऑयल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मैदा वापस डालेंगे। इसको करने का रीजन ये है कि जब हमारा केक पकेगा तो वो केक चिपकेगा नहीं। आपने बहुत बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग बटर पेपर भी यूज करते हैं इसके नीचे, बट हम मतलब वी यूज दिस मैदा, ताकि वो पूरा अच्छे से लग जाए। उसके बाद जो ये केक था, प्लीज रिमेम्बर बिफोर पुटिंग इट वी हैव टू मिक्स इट 3 to 4 more times। इसके अंदर हम चोको चिप्स भी डाल सकते हैं जो हमारे पास आते हैं। और इसके अंदर हम जैसे किसी को अगर चॉकलेट केक पसंद है, वी कैन पुट कोकोआ पाउडर आल्सो, बट दैट शुड बी लाइक कैरम पाउडर, जो कि हम क्योंकि हम कैफीन नहीं खा सकते हैं। White chocolate can be used, Mataji, for deities. यस माता जी, वी कैन यूज व्हाइट चॉकलेट्स आल्सो।
And what the best is for chocolate fragrance, there is one more thing कि आप इसके अंदर चिकोरी, हम स्कॉन में बहुत सारी चिकोरी यूज करते हैं, आपने देखा होगा। तो Right, हम right. केक में चिकोरी भी डालते हैं। अगर हम चिकोरी डालेंगे ना, सेम केक का फ्लेवर आता है, बट अगेन चिकोरी बहुत स्ट्रांग होती है। तो हाफ केजी के अंदर सिर्फ हाफ स्पून चिकोरी डलेगी, उससे ही पूरा कलर आ जाएगा, पूरा फ्रेग्रेंस। नाउ वी कैन पुट ड्राई फ्रूट्स। ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी डाल सकते। अगर किसी को केक के अंदर ड्राई फ्रूट्स चाहिए, तो जब हमने ये बैटर अभी फर्मेंट करने के लिए रखा था थोड़ा सा, ताकि वो राइज हो, तब हम उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। दिस इज हाउ इट्स गोना लुक, इफ यू गाइस कैन सी माता प्लीज जी लेट। चिकोरी क्या होता है? जी माता जी। चिकोरी क्या होता Chikori, है? chikori is our coffee of ISKCON, liquid coffee. यस, और लिक्विड ISKCON में कॉफी आप हमारे पंजाबी बाग टेम्पल में भी जाएंगे तो वहां पर आपको बॉटल्स मिलेंगी, छोटी बड़ी। ISKCON की कॉफी लिक्विड कॉफी होती है, उसका एक ड्रॉप डालना होता है कप के लिए, तो वो मिल जाती है आसानी से। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी होती है, धनिए की कॉफी का लिक्विड बना के रखा होता है। दैट इज हर्बल कॉफी विच इज अलाउड फॉर अकॉर्डिंग टू अवर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। हम लोग पी सकते हैं डिवोटीज। एक्चुअली फॉर चॉकलेट फ्लेवर या तो हम कैरा पाउडर यूज करते हैं, या फिर हम चिकोरी डालते हैं। अभी जैसे महाराज की लास्ट टू लास्ट व्यास पूजा में इट वाज, हमें बोला गया था कि हमें महाराज को चॉकलेट्स वाला चाहिए, तो हमने कैरा पाउडर और चिकोरी दोनों मिक्स करके बनाया था महाराज के लिए। ये सबको माता क्लियर है यहाँ तक अभी तक? यस माता जी जी कैरेट सर। पाउडर इजीली मिल जाता है? माता जी आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, और नहीं तो आपको इस्कॉन में भी मिल जाता है। हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश में कैरा पाउडर वो सेल करते हैं। ओके। जी। तो जी कैरब और चिकोरी का क्वांटिटी क्या क्या होता है, मतलब हाफ हाफ दोनों डालें या कैसे? नहीं माता जी, कैरम पाउडर आप डाल सकते हो, जैसे नॉर्मल चॉकलेट आप डालते हो ना, वैसे आप हम्म। डाल सकते हो। हाफ केजी में आप 2 स्पून कैरम पाउडर डालोगे, बहुत परफेक्टली, बहुत अच्छे से चॉकलेट फ्लेवर देगा वो। चिकोरी माता जी ना, वो चिकोरी ना चाय पत्ती जैसी होती है, जैसे हल्का से डालो तो वो पूरा फ्रेग्रेंस छोड़ देती है, तो इसीलिए चिकोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर ज्यादा डलेगी ना तो कड़वा टेस्ट करेगा। चाहे आपने शुगर कितना भी डाला, उससे वो कड़वा फ्लेवर आएगा केक का। और माता जी शुगर का आप बता सकते हैं कि शुगर, जैसे आपने बताया कि शुगर 4 स्पून, तो अब हमारा जो कटोरी का साइज है और जो चम्मच का साइज है उसको कैसे देखना चाहिए माता जी? माता जी जैसे ये चीज, ये सेम क्वेश्चन मेरा भी हम माता जी से था। अगर आप लोग कभी हमारे डीटी किचन आएंगे ना, तो आप लोग देखेंगे कि हम किसी भी क्वांटिटी में हम कुछ भी मेजरमेंट ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक टाइप का अंदाजा बन जाता है हमारा। तो जैसे मतलब, जैसे हम जो वुमेन्स होती हैं, वी कैन थिंक ना कि इतने में मतलब कितना चीनी डाल सकता है। तो इतने में अगर आप हाफ केजी में आप 4 नॉर्मल स्पून या फिर हाफ कटोरी, ये जो कटोरी है नॉर्मल, किसी के घर में भी ये नॉर्मल कटोरी होगी, इससे हाफ कटोरी हाफ केजी में बहुत। अगर एक डालना तो इसका पूरा फुल भर के, जब हमारा 1 किलो का केक बनेगा तो उसमें पूरा फुल भर के आप शुगर, खांड या फिर गुड़, तीनों चीज डाल सकते हो। ऐसा होता है। माता जी जो इस कटोरी के हिसाब से मैदा है वो भी लेवल्ड होता है या 3/4 होता है? माता जी लेवल्ड, 3/4 में आपका वो हो जाएगा, मतलब तो मतलब चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी। 2 कप मैदा में हाँ। हाफ केजी, हाफ कटोरी शुगर, ऐसा? यस, हाफ कटोरी शुगर, 2 कप मैदा में हाफ कटोरी शुगर, और 1 कटोरी कर्ड। ओके। माता जी कम वन मीठा कटोरी नहीं रहेगा? मतलब आटे को और चीनी थोड़ा कम, मतलब थोड़ा सा लग रहा है, अपना माता जी आप अंदाजा अपने दे हिसाब से, लो। हाँ आप अपने हिसाब से अंदाजे से डाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कम है चीनी, तो आप एक कटोरी भी चीनी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके लिए। आप ऐसा कर सकते हो। माता जी एक भी रिपीट कर दोगे आप पूरा? पूरा प्रोसेस माता जी? हाँ पहले मतलब एक बोल मिनट, के, मतलब बोल के जस्ट रिपीट अ कर मिनट दो। माता जी, पहले इसको बेकिंग सीख लो, फिर लास्ट में शी विल रिपीट ऑल्सो एंड वी विल सेंड द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, यू कैन हियर। वी हैव टाइम लिमिट फाउंडेशन, सो प्लीज लेट her finish the baking first.
जी. So if we have oven, like I don't have oven, I'm just trying to save money. मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास oven आ जाए. तो आपको 180 डिग्री सेल्सियस में डालना है ऊपर और नीचे. अवन का बेसिकली अगर किसी के पास ओटीजी है तो अवन में दो लेयर होता है कि नीचे से भी पकता है केक. जैसे अगर मैं देखूं तो अवन में अगर मैं डालूंगी तो नीचे से भी केक पकेगा और ऊपर से भी पकेगा. तो वो एक एडवांटेज हो जाता है हमारे पास. तो 180 डिग्रीज पे ये 40 मिनट्स में पूरा अच्छे से पक जाएगा. बहुत अच्छे से पकेगा. हो सकता है जल्दी भी पक जाए. अगर किसी का बैटर थिक है मतलब पतला है सॉरी, तो उसका बहुत जल्दी पकेगा. और किसी का अगर मतलब सही अच्छी सी कंसिस्टेंसी में है तो 40 मिनट में ही पकेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा. और अगर हम नॉर्मल जैसे मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ माता जी की वजह से आई एम ट्राइंग, वरना तो कॉन्फिडेंस भी नहीं था. तो मैंने पहले से ही कढ़ाई हीटअप करी है. मेरे को बताना आप लोग अगर आपको दिख रहा है कि नहीं. एक सेकेंड. ये दिख रहा है. कढ़ाई मतलब ये नॉर्मल कढ़ाई ली है मैंने, ठीक है. इसको मैंने पहले से ही गर्म किया है. अभी जब हम मैं बता रही थी तो उसके 10 मिनट पहले ही मैंने गर्म कर दिया. और इसमें मैंने ये ये है सॉल्ट. नॉर्मल कोई सा भी सॉल्ट आप ले सकते हो, रॉक सॉल्ट भी ले सकते हो, दैट विल आल्सो वर्क. और ये जस्ट नॉर्मल एक ग्लास टाइप का है. उसके बाद आई जस्ट पुट द केक हियर. एक सेकंड. अभी गैस ऑन करी हुई है आपने माता जी? हाँ माता जी गैस ऑन है. प्लीज सिर्फ बी अवेयर गैस. कि आपके हाथ. ये पूरा ऐसे हो जाएगा. प्लीज रिमेम्बर कि स्टार्टिंग में जो गैस होगा ना वो थोड़ा थोड़ा हाई रहेगा. फिर उसके बाद आके नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे आ जाएगा. उसके बाद आप किसी भी फ्राइंग पैन या किसी भी चीज से ऐसे ढकना है कि इसके अंदर एयर ना पास हो. मेरे पास इतने बर्तन नहीं है अभी, तो मैंने अपना फ्राइंग पैन ही यूज किया था. और हम सॉल्ट इसीलिए यूज कर रहे हैं कि जस्ट इन केस अगर किसी के पास मान लीजिए पतली कढ़ाई है या किसी के पास मोटी भी कढ़ाई है, तो 40 मिनट तक ऐसे कढ़ाई हीट रहेगा ना तो कढ़ाई हमारी जल सकती है. अगर हम सॉल्ट यूज करेंगे ना तो हमारी कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं जलेगी. चाहे वो 1 घंटे के लिए हम कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी बेक कर रहे हो या कुछ भी, तो कढ़ाई नहीं जलेगी. अगर सॉल्ट नहीं है तो आपकी कढ़ाई अंदर से पूरी जल जाएगी, नीचे से काली हो जाएगी वो पूरी तरीके से. उसके बाद आई हैव दिस फ्राइंग पैन ऑफ माइन. मैंने इसको पूरा से ढक दिया. यू कैन सी इसके एयर कहीं पास नहीं होगा. और ये 40 मिनट तक के लिए नॉर्मल, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा फ्लेम हाई रहेगा, बिल्कुल भी हाई नहीं, मीडियम से थोड़ा ऊपर. और उसके बाद आप 20 मिनट बाद आके आप उसको कम कर देना. इज माता दिस जी, क्लियर? सबको ये समझ आ गया? ये यस माता जी कढ़ाई को प्री हीट कितनी देर तक करना है? मतलब जी 10 मिनट्स, 10 मिनट. और 10 मिनट. मीडियम पे कि हाई पे? मतलब जी हाई पे, मीडियम पे वो Depend- फिर. अच्छा अच्छा. हाँ. ओके. अभी हाँ मैंने जी. क्या किया, मैंने अभी एक्सपेरिमेंट ही था मेरा फर्स्ट. वो होपफुली माता जी की प्रेयर्स की वजह से बहुत अच्छा निकल के आया. मैंने 250 ग्राम्स का केक बनाया था. उससे भी मतलब जैसे कि मैंने हाफ केजी में 2 कटोरा लिया था, तो 250 ग्राम में मैंने 1 कटोरा लिया था मैदा. हाफ कटोरी मैंने दही ली थी. और दूध मैंने 1 कटोरी लिया था कंसिस्टेंसी की तरह से. तो ये जो केक मेरे पास अभी है वो ऐसा टर्न आउट होके आया है. दिस इज 250 grams इफ यू कैन सी. आई एम सॉरी इतना परफेक्ट नहीं बना बट बन गया. और इसको बेस्ट तरीका इसको चेक करने का है कि आप इसमें कुछ भी, या तो चाकू या तो टूथपिक अगर आप डालोगे. अगर मैंने ये डाला तो ये टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ रही है, मतलब कुछ फंस नहीं रहा. दैट मीन्स आपका केक परफेक्टली पक गया है. अगर टूथपिक डाला है और उसमें से कुछ चीजें आ रही है जैसे मैदा चिपका आ रहा है, तो दैट मीन्स आपका केक कच्चा है, उसको और टाइम लगेगा. माता किसी को जी, आई कुछ हैव अ पूछना है? क्वेश्चन. जी. कि आपने हाई फ्लेम पे प्री हीट किया 10 मिनट के लिए, राइट? उसके बाद राइट. जब हम रख रहे हैं मिक्सचर को, देन हम उसको मीडियम पे करेंगे. जी. नहीं माता जी, उसको तभी भी हमें हाई पे ही करना है फॉर 10 to 20 मिनट्स. उसके बाद हमें मीडियम पे करना है. आप चेक भी करोगे ना उठा के, जैसे अगर आप अपना वो कढ़ाई में से वो जो जिस चीज से ढका है आप उठा के देखोगे ना, केक थोड़ा राइज हो जाएगा.
क्योंकि उसमें हमने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दही ये सब डाला है। ये राइज हो जाएगा, आपको अपने आप समझ आ जाए कि हाँ ठीक है, अब मेरे को थोड़ा इसको कम करना पड़ता है, क्योंकि हाई फ्लेम पे पूरे टाइम पे करके रखेंगे तो पूरा केक जल जाए। एंड माता जी उसके बाद ऑल थ्रू आउट वो मीडियम पर ही रहेगा या फिर और कम करना पड़ेगा? ना नो माता जी, मीडियम पे रहेगा। जब माता तक जी पूरा बेक नहीं हो वनीला जाता? एसेंस, हाँ, वनीला एसेंस इज वेरी ग्रेट इंग्रेडिएंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर बेकिंग पीपल। जैसे ही आपको केक में से वनीला एसेंस की खुशबू आने लग जाती है ना, जैसे केक पकने लग स्टार्ट हो जाता है, जैसे हाफ हो गया, तो अपने आप ना आपको पूरे घर में वनीला की खुशबू आने लगेगी पूरे उसमें। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये हाफ बेक्ड ऐसे हो गया है। फिर आप उसको कम कर देना वो, मतलब ये दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। जब भी मैंने हमारे डीटी किचन में बनाया, तो जैसे हमारा हाफ केक हो जाता था ना, तो हमारे पूरे डीटी किचन में वनीला की, या फिर अगर हमने मान लो लेमन जेस्ट का बनाया है या फिर सिर्फ रोज डाल के बनाया है, तो पूरा फ्रेग्रेंस आता था। तो उससे फिर हम, वैसे ओटीजी में तो टेम्परेचर से कम करने का नहीं होता, बट अगर कढ़ाई में बना रहे हो तो आपको कम करना पड़ेगा, ऐसा होता है। एंड माता जी ये माइक्रोवेव में भी हम बना सकते हैं? जी माता जी, नो माता जी, यू कांट मेक इन माइक्रोवेव। देयर आर टू टाइप्स, वन इज अवन जो कि नॉर्मल होता है, और एक ओटीजी होता है। माइक्रोवेव का मेरे को पता नहीं है, माता जी बता पाएंगे आपको, मेरे को इसका आइडिया नहीं है। नो माता जी, कन्वेक्शन मोड बदल। माइक्रोवेव में नहीं बन पाता केक। हाँ, माइक्रोवेव We में get best results in oven, जो प्रॉपर oven होता है उसमें बेक होता है। लाइक जैसे यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं तो वी यूज 360 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 55 मिनट्स। और उसके बाद उसको निकाल के केक को फिर हम रख देते हैं, जब ठंडा हो जाए तो उसको, जैसे माता जी ने बना के दिखाया है, तो उसको अपसाइड डाउन कर देते हैं प्लेट के ऊपर, तो वो आ जाता है। हाँ। और भी इसमें जैसे ये वाला तो टिन कंटेनर है, तो यहाँ पर बहुत इजीली सिलिकॉन वाले मिल जाते हैं, तो उसमें भी बन जाता है। उसमें क्या होता है, वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं करता, वो अपने आप ही छोड़ देता है। और हल्का सा हमें ऑयल स्प्रे करना होता है बस स्प्रेयर से, तो वो भी बहुत इजी होता है कि उसमें अपने आप ही निकल के आ जाता है बाहर। इट्स वेरी इजी टू वॉश एंड मेंटेन। तो यहाँ पर भी आपको इंडिया में भी मिल जाना चाहिए। और दूसरा मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो सबको कंफ्यूजन हो रहा है रिगार्डिंग क्वांटिटी, तो आप लोग ना ये ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, किसी भी यूटेंसिल शॉप पे भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत इजीली मिलता है। ये मेजरिंग कप्स आते हैं, ये बिल्कुल हमें कंफ्यूजन नहीं करते कि छोटी कटोरी है बड़ी कटोरी है। तो इसमें जो है आप देख सकते हो कि एक कप का है, उसके बाद हाफ कप है, 1/4 कप है, 3/4 कप है, 1/3 कप है। तो इसमें क्या होता है, मेजरमेंट बहुत इजी होते हैं आपके, कभी भी ये नहीं होता कि ऊपर नीचे होंगे। आप ऊपर पूरा लेवल तक भरो तो पूरा पता लग जाएगा कि ये एग्जैक्ट स्टैंडर्ड एक कप है। और इसके अलावा ये मेजरिंग, ये पूरा सेट आता है कप्स का, और ये स्पून्स आती हैं, मेजरिंग स्पून। अब इसमें लिखा हुआ है कि ये 1 टीस्पून है, राइट। 1 टीस्पून है, हाफ टी स्पून है, 1/4 टीस्पून है। तो यूजुअली जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं कि हम लोग हाफ टी स्पून यूज करते हैं बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून करते हैं बेकिंग सोडा। नॉर्मल अपने फैमिली केक जो माता जी ने बताया है कि ½ केजी वाला, और वो सफिशिएंट होता है एक फैमिली के लिए। अगर आपको बड़ा बनाना है तो उसमें आप सारी क्वांटिटी को इंटू 2 कर दो, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, इनको यूज करेंगे तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी। नहीं तो हमेशा जो होता है यही गलती होती है मेजरमेंट्स की। केक में मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अंदाजे से पहले शुरू शुरू में तो बनाने में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसके ड्रास्टिक रिजल्ट्स होते हैं। जब तक हम लोग एक्सपर्ट नहीं होते, जैसे माता जी और तो सब एक्सपर्ट हो गए डीटी किचन में करते करते, तो तब तक हम लोगों को ये मेजरिंग स्पून बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, ठीक है। और अभी हम लोग ये स्टैंडर्ड केक एक बार ट्राई करते हैं, हम लोग जितने लोगों ने सीखा है अभी माता जी के अकॉर्डिंग। और जो माता जी का शुगर की क्वांटिटी लोगों को कम लग रही है, तो वो जो मीठा, इंडियन लोग जो ज्यादा मीठा खाते हैं, तो उसमें हम 1-2 कप मैदा में 1 कप चीनी भी कर सकते हैं। वो धीरे धीरे आप जब बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी फैमिली का टेस्ट क्या बनता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक नया ग्रुप बना देते हैं, जिसको नाम लिख देंगे क्रिएटिव क्लास ऑफरिंग्स। जो भी हमने बनाया भगवान को ऑफर किया, तो उसकी पिक्चर्स हम डाल सकते हैं, क्योंकि जो निताई प्रिय क्लासेस का ग्रुप है, इट इज ओनली फॉर अनाउंसमेंट्स।
वी वांट टू लिमिट कि सिर्फ उसमें हम लोग अपने पोस्टर्स डालें और क्लास का लिंक डालें। तो वो ग्रुप में आप जो जो बना रहे हैं, आपका जैसा रिजल्ट आया, अच्छा आ रहा है बुरा आ रहा है, वो हम उसमें सारी पिक्चर्स डालेंगे अपनी। ठीक है, तो अभी हम आपको वो लिंक भेज देंगे इसी ग्रुप में। तो आप उसमें जैसे जैसे बनाएंगे, वो पूरा 1 हफ्ता है आपके पास, 2 वीक्स है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो है हम रखना चाहते हैं ज्वेलरी मेकिंग। तो उसमें जयश्री माता जी और हमारी राधिका दुलाली माता जी हैं, तो दे आर वेरी एक्सपर्ट। वो लोग सब बीड्स की अलग अलग मालाएं बनाते हैं, बहुत सालों से बना रहे हैं, उनके बच्चे तक बना रहे हैं, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन डिफरेंट टेम्पल्स, चाहे राधा दामोदर टेम्पल हो, इस्कॉन मायापुर हो, इस्कॉन वृंदावन हो, इस्कॉन पंजाबी बाग हो। वो सब पुजारी से वहां के इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट लेकर अलग अलग स्टाइल्स में भगवान की ब्रेसलेट्स, भगवान की एंकलेट्स, भगवान की जो मालाएं आपने देखा होगा, इतनी लंबी लंबी मोतियों की मालाएं हम लोग फ्लावर गार्लैंड के साथ ही अटैच करते हैं। तो वो सब आपको डिटेल में सिखाने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक। तो तब तक हम लोगों के पास 2 वीक्स का टाइम होगा। हम लोग एक अपने अपने घरों में अब अलग अलग वेरिएशंस के साथ भी, जैसे माता जी ने बताया, पहले सिंपल केक से ट्राई करते हैं, फिर आप अपने आप अलग अलग भी ट्राई कर सकते हो वेरिएशंस, और उसके पिक्चर्स हम डालते हैं क्रिएटिव क्लास ऑफरिंग्स ग्रुप में। ठीक है, तो अभी ये रखते हैं, और माता जी को हम अपना एक्सप्रेस करते हैं हार्टीएस्ट ग्रैटिट्यूड कि उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया। लाइक आई एम टोटली सेटिस्फाइड कि उन्होंने कैमरा, मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा, आई वाज स्केप्टिकल के पता नहीं कैमरे की पोजीशनिंग ठीक होगी, ऑफलाइन क्लास नहीं है, सबको समझ में आएगा कि नहीं, बट आई एम टोटली सेटिस्फाइड। और आप लोग बताइए कि ये आपको ठीक लग रहा है ऐसे करना क्लास? आर यू सेटिस्फाइड? हाँ जी माता हरी जी। बोल, यस माता जी, यस वेरी माता दी, नाइस, वेरी यस सेटिस्फाइड। बहुत माता सुंदर। जी माता जी, यस। वेरी और जी देयर माता जी। इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर, और जैसे जैसे आप लोग अपने हमें फीडबैक देंगे तो हम इम्प्रूव करते जाएंगे। तो हमें और चांसेस दीजिए कि सो दैट वी कैन इम्प्रूव। चैलेंजेस तो हर जगह आएंगे, बट वी कैन ऑलवेज इम्प्रूव, क्योंकि हम सबके लिए ऑफलाइन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऑनलाइन हम बहुत कुछ सीख पाएंगे, और इकट्ठे मिलकर टुगेदर ईच वन अचीव्स मोर। तो हम लोग एज अ टीम बहुत कुछ सीख पाएंगे और अपने टैलेंट्स को शेयर कर पाएंगे, so that we can also become skillful in service of Krishna। ठीक है, तो अभी हम माता जी को सब लोग थैंक यू करते हैं, और माता जी से एक पास टाइम सुनते हैं, या एक उनको इम्पोर्टेंट कोई भी स्पेशल मेमोरी जो डीटी किचन में करते हुए सर्विस, कुछ ना कुछ, कई बार बहुत सारी, जिसे हम कहते थे पंजाबी बाग डीटी किचन में, कि भगवान बहुत सारी लीलाएं करते हैं, कभी बिगड़ जाता है, कभी संवर जाता है, कभी भगवान बचा लेते हैं। तो कैसे एक पास टाइम सुनते हैं, और फिर उसके बाद में आपको प्रभुपाद और शुद्ध कृति प्रभु का बहुत ही अच्छा पास टाइम सुना के क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो ओवर टू यू शिवानी माता जी, एक स्पेशल मेमोरी शेयर करो। जी माता जी, वन टिप मेरे को जो शेयर करना है वो है कि जब हम केक निकालते हैं ना, तो मतलब जब हम हमें दो चीज में बहुत होना पड़ेगा, कि हमें बहुत पेशेंट होना पड़ेगा केक बनाते टाइम, क्योंकि जैसे मेरी स्टार्टिंग में बहुत आदत थी कि मैं बार बार ना अवन खोल खोल के देखती थी कि बना है कि नहीं बना, और अभी भी मैं देख रही थी कि कढ़ाई में हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें बहुत पेशेंटली वो चीज देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बार बार अवन खोलेंगे ना तो अच्छे से हीट नहीं होगा, अगर कढ़ाई में से ही बार बार करेंगे ना तो वो अच्छे से बिल्कुल भी हीट नहीं होगा। तो हमें बहुत पेशेंटली उसको बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये पूरा स्पॉन्ज टाइप ऐसे हो गया है, तो वो इसीलिए क्योंकि ये अच्छे से पूरा हीट हुआ है। और सेकंड टिप ये है कि जब हम केक को निकालते हैं ना, तो तुरंत ही हमको उसको पलटाना नहीं है, तुरंत भी कुछ नहीं करना, उसको बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। क्योंकि अगर वो नॉर्मल ठंडा नहीं होगा ना, तो केक जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो थोड़ा गीला भी होता है, पर हमें लगता है कि वो कच्चा है, लेकिन ऐसे नहीं होगा वो कच्चा। अगर वो पूरा अच्छी तरीके से ड्राई हो गया ना, अगर हम पूरा तब निकालेंगे तो वो अच्छे से परफेक्टली आउट आएगा। लेकिन अगर तुरंत निकालेंगे तो हो सकता है कि केक में उसके सरफेस पे चीजें थोड़ी वो केक थोड़ा लगा रहे और अच्छे से ना निकल के आए वो। और जो पास टाइम है, एक्चुअली मैं अभी इस जन्माष्टमी का ही बताती हूँ आपको एक पास टाइम का, कि जन्माष्टमी पे ना हम सेवा कार्ड्स बनवाने,
और क्या कहते हैं, मैंने बनवाया नहीं था क्योंकि मेरा ऑफिस का कुछ बहुत सारा था कि मेरे को लग रहा था कि शायद मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी जन्माष्टमी में, मैं सर्विस नहीं कर पाऊंगी। पर मैंने सेवा कार्ड नहीं बनवाया था क्योंकि हमारे में होता है कि हम सेवा कार्ड बनवाए और तभी एंट्री मिल पाती है क्योंकि जन्माष्टमी बहुत ज्यादा हो जाता है उसके ऊपर। तो एक सेकंड, अभी आ रही हूँ। तो उस चीज को लेके मैं बहुत ज्यादा थी कि शायद मेरी सेवा नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। पर मैंने माता जी से बोला कि मेरे को ना पहले ही कुछ करना है। तो उस दिन बहुत सारी माताएं आ नहीं रही थी, मतलब हमारे दीदी किचन में ऐसा होता है कि 56 भोग की तैयारी पहले से ही हो जाती है। ड्राई चीजें जो हम बनाते हैं पहले से हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज कि जन्माष्टमी अभी 10 दिन बाद है, तो आज से ही प्रिपरेशन शुरू होंगी। अब जिस माता जी को जो भी बनाना अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से अपने टाइम पे आएंगी माता जी से पूछ के और वो बनाएंगी। तो केक के लिए 4 माताएं और 4 में से कोई भी नहीं आया था। और लकीली मैं उस दिन थी। तो फिर मैंने माता जी से बोला था कि माता जी हमारा केक क्यों नहीं बना है क्योंकि परसों जन्माष्टमी है, तो केक्स बने क्यों नहीं है। तो माता जी बहुत परेशान थी। माता जी बोली कि मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है शिवानी, मैं सबको कॉल करके भी थक गई हूँ पर कोई मेरा मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। उस दिन आई डोंट नो हाउ महाराज, क्योंकि राधा पार्षद की बहुत डियर है गोपाल कृष्ण महाराज के, और पता नहीं उनको कैसे समझ में आ गया। और उस दिन somehow I made 250 केक्स, मैंने 250 ड्राई केक्स बनाए थे और अकेले बनाए थे। और माता जी इतना खुश हो गई थी कि वो खुश होकर उन्होंने मेरे को जन्माष्टमी पे वीआईपी कार्ड उन्होंने मेरे को दिया, जिसकी वजह से मैं जन्माष्टमी के दिन आ भी पाई थी। और मतलब जैसे मेरे को ऐसे कोई लाइन वाइन में नहीं लगना पड़ा था या कुछ, तो मैं वही कि कितनी बड़ी उनका उनकी मर्जी थी मेरे ऊपर। और जस्ट हाउ कृष्णा की अरेंजमेंट्स कि उन्होंने मेरे से सर्विस भी ले ली, तो मैं बहुत खुश थी उससे। यही था बात टाइम। श्रील प्रभुपाद की जय। जिसे कहते हैं मूकम जय। करोति वाचा पंगुम लगायते यत् कृपा तथम वंदे श्री गुरु दीनतारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। भगवान सब कुछ करा सकते हैं। एक शिवानी माता जी कैसे बेक करा सकते हैं 250। और हम लोग उसमें आदि लीला में चैतन्य चरितमृत में पढ़ते भी हैं, कथांचन यस्मिन् स्मृते दुष्करम सुकरम भवेत्, कि अगर चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं जो डिफिकल्ट थिंग्स हैं दे बिकम इजी टू ऑब्टेन। तो भगवान हमसे सब कुछ करा सकते हैं। ही कैन एम्पावर अस अनलिमिटेडली। तो एक छोटा सा पास टाइम में बता के क्लास को वाइंड अप करूंगी। आप सुनना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम करें? सुनना चाहते मैं दीदी? यस। माता जी सुनना अगर चाहते हैं। प्रीति माता जी सुनना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, माता जी नेक्स्ट टाइम। सुनना यस चाहते माता हैं, जी, प्लीज कंटिन्यू। नाउ प्लीज माता जी। यस माता जी। ओके। तो ये बहुत ही सुंदर पास टाइम है। अक्टूबर 16 1972 में जब प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में आए तो श्रुताकृति प्रभु उनके पर्सनल सर्वेंट थे, उनके लिए कुकिंग करते थे, उनकी डेली उनकी ट्रांसडेंटल बॉडी को मसाज करते थे। और ऐसे करते करते 5 हफ्ते हो गए। और फिर जो है एक दिन उनको चेंज मिला, उनको एक शौक मिला कि यमुना माता जी आ गई हैं और वो आज से प्रभुपाद की कुकिंग करेंगे। तो ऑब्वियसली जब रेगुलर कुकिंग कर रहे होते हैं हम, वो भी प्योर डिवोटी की प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट थे, तो प्रभु जी को कुछ अच्छा नहीं लगा कि उनके कुकिंग की सर्विस क्यों ले ली। और फिर जो है उनको लगा कि मुझे तो प्रभुपाद ने डैलस के टेम्पल में पर्सनली कुकर, जैसे जो प्रभुपाद का 3 टायर कुकर था, आप सबने देखा है प्रभुपाद क्वार्टर्स में प्रभुपाद का 3 टायर कुकर एल्युमिनियम वाला, यस। यस माता फिर जी। कुकिंग करना प्रभुपाद ने उनको खुद सिखाया था। तो उनको लगा कि ये तो मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा। तो उनके अंदर कुछ था, एंजाइटी उनके हार्ट में चल रही थी। और फिर उन्होंने क्या किया कि एक दिन क्या हुआ, प्रभुपाद की पूरी बॉडी को मसाज किया और उसके बाद फिर खुद स्नान किया, खुद तैयार हुए। और उनको लगा कि मेरे पास कुकिंग तो है नहीं। तो वो जो आपने देखा होगा राधा टेम्पल के कंपाउंड में घूम रहे थे। तो थोड़ी देर बाद प्रभुपाद की जो सामने वाला आपने देखा है, प्रभुपाद के रूम के सामने ही प्रभुपाद की किचन थी, राधा यस दामोदर मंदिर, माता सबको जी। याद है। यस तो माता वहां जी। पे बैठ के प्रभुपाद, नीचे बैठ के जहाँ आसन लगाया वहां पे बैठ के प्रभुपाद अपना प्रसाद पा रहे थे। तो उन्होंने प्रभुपाद ने जैसे ही देखा कि श्रुताकृति प्रभु घूम रहे हैं, तो उनसे पूछा कि आपने अपना प्रसाद पाया क्या, लंच किया? तो उन्होंने बोला नहीं किया। तो उन्होंने यमुना माता जी को कहा कि इनकी भी थाली लगाओ। तो वो थाली लगा के उनको देती हैं, तो वो बैठ जाते हैं प्रभुपाद के साथ प्रसाद पाने के।
तो आप सोचिए कि मतलब इस बुक में लिखते हैं व्हाट्स द डिफिकल्टी में ग्रेट शुद्धकृति प्रभु, क्या मैंने उस टाइम पे रियलाइज नहीं किया कि मेरा क्या गुड फॉर्च्यून है कि राधा दामोदर के मंदिर में, प्रभुपाद के किचन में मैं एक शुद्ध भक्त प्रभुपाद शक्तिवेश अवतार के साथ बैठ के प्रसाद पा रहा हूँ। और फिर कहते अभी मैंने ये अंदर मेरे गया ही नहीं था, मेरे संग ही नहीं किया था ये रियलाइजेशन कि उसके बाद क्या मिरेकल हुआ कि देखो कि मैंने जैसे यमुना माता जी के करा हुआ प्रसाद को टेस्ट किया तो मुझे लगा कि ये तो ट्रांसडेंटल है, इट वाज इनक्रेडिबल। तो वो लिखते हैं कि यमुना देवी was an empowered devotee of the Lord sent here to sumptuously feed Srila Prabhupada. Each preparation tasted incredible. She made perfect chapatis. The sabjis tasted as if they have come from the spiritual world. तो जिन लोगों को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रांसलेट करती हूँ कि उनको हर चीज लगा कि ये दूसरे लोक से आई है। सब चीज भी ऐसे लगा कि जैसे टेस्ट मैंने कभी किया ही नहीं है। और फिर वो कहते कि हमेशा प्रभुपाद मेरा प्रसाद करा हुआ जब पाते थे तो वो बोलते थे इट्स अ नाइस अमेरिकन प्रसाद, लेकिन यमुना माता जी का प्रसाद पाके प्रभुपाद ऐसे करते थे, मतलब ये ट्रांसडेंटल है। फर्स्ट लेवल बोलते थे ठीक ठीक है, सेकंड लेवल मतलब यहाँ तक बेटर है, अगर यहाँ होता था तो यहाँ तक खाया मतलब बेटर है, लेकिन अगर यहाँ बोलते थे तो बेस्ट, मतलब कि इट इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, ये ट्रांसडेंटल है, ये कृष्ण लोक में आप मंजरियों की तरह साथ में बना रहे हो और तब उसको राधा कृष्ण एंजॉय कर रहे हैं, तो वो प्रसाद हमें मिला है। तो इसके बाद जो है यमुना's cooking was so transcendental that it seemed like I had never eaten before. तो इसके बाद जो है यमुना माता जी की कुकिंग खा के उनको लगता है कि जो उनके अंदर एंजाइटीज थी वो सब चली गई, कि मैं क्या सोच रहा था, उनके लिए एंजाइटी कर रहा था कि मुझे सर्विस ले ली, लेकिन मतलब उनका खा के मुझे कैसा लग रहा है, तो उनके सब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और फिर तभी प्रभुपाद बोलते हैं कि आज इन्होंने आपके लिए थाली परोसी है, कल आपको कुकिंग करनी चाहिए और इनको सर्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सबको यहाँ पर प्रभु प्रभु बोलते हैं, माता जी बोलते हैं, तो प्रभु का मतलब है कि आपके वो स्वामी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को प्रभु जी बोलो और उससे सर्विस लेते जाओ, आपको भी उसको सर्व करना चाहिए नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पर बहुत सुंदर लिखते हैं अच्युताकृति प्रभु कि कैसे प्रभुपाद ने उनको 2 इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट दी, और हमेशा याद रखना चाहिए कि ये राधा रानी के किचन है। अगर हम डीटी किचन में भी सर्विस करते हैं तो मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस रहा है कि वहां पर हर चीज ट्रांसडेंटल होती है, उनके वो सब कुछ, शी इज द कंट्रोलर। हम लोग सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि निमित्त मात्र सव्य साची, कि हम लोग सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनकर कड़छियां चलाते हैं, पर अगर जैसा हमारा भाव होता है वैसी कुकिंग होती है, बिकॉज शी नोज हमारा भाव क्या है। अगर हम बहुत प्रेयर्स कर कर, बहुत सारी चंपक लता और जो राधा रानी है वो किचन की इंचार्ज होती हैं और वो बहुत अलग अलग डिशेस बनाती हैं गोलोका में भी, अगर हम उनको प्रे करके बनाते हैं भोगा और फिर ऑफर करते हैं, तो हम देखेंगे बहुत अलग टेस्ट आए, बहुत ट्रांसडेंटल आए। और जहां पर हम प्राइड होता है कि मैंने यूट्यूब से सीख ली और मैं बना के दिखा दूंगी और मुझे ये आता है, तो आप देखेंगे कि वो कहीं ना कुछ गड़बड़ होगी, और वो जो फीलिंग प्रसादम खा के जो ट्रांसडेंटल फीलिंग आती है, जो आपको लगता है कि मेरी सोल सेटिस्फाई हो गई ऐसा प्रसाद खाया, कि उसमें आपको लगता नहीं है कि कोई क्वांटिटी मैटर कर रही है, जरा सा भी खाया जैसे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, आपको लगेगा यू हैड अ कंप्लीट मील, इट इज सो सेटिस्फाइंग फॉर द सोल, इट इज नरिशमेंट फॉर द सोल बेसिकली। तो वो फीलिंग आएगी जब हम बहुत सारी प्रेयर्स करते हैं प्रभुपाद को, बहुत सारी प्रेयर्स करते हैं गुरु महाराज को, और हम लोग उसमें मंगलाचरण, सॉरी, रोज सुबह मंगला आरती में भी गाते हैं ना चतुर्विधा, कि हम लोग कैसे भगवान के लिए, वो गुरु महाराज भी रोज अलग अलग टाइप की डिशेस बनाते हैं, ऑफर करते हैं, जब हम उनको कहते हैं कि आप बनाइए और हम आपको असिस्ट करेंगे, आई एम नॉट द कंट्रोलर, मैं डूअर नहीं हूँ, तब आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। दैट इज वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू।
बाकी शिवानी माता जी इज द एक्सपर्ट. शिवानी माता जी want to say something on this? Mataji, I would only say one thing in the end, that I'm really sorry, मैंने बहुत mistakes करी while teaching, so please forgive me, but I really enjoyed. और one thing जो हमें बोला जाता है डीटी किचन में कि जैसे हमारे डीटी किचन में, या अगर हम घर पे भी भोगा बनाते हैं ना, तो हमें कभी भी ना जब फ्रेग्रेंस आती है ना प्रसाद की, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए मन में कि आहा कितना अच्छा बना है। तो अगर हम ये सोचते हैं ना जब, तो वो दैट मीन्स हमने खुद को ऑलरेडी ऑफर कर दिया, और फिर भगवान नहीं हो उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये चीज हमें फोरमोस्ट सिखाई जाती है डीडी किचन में, क्योंकि बहुत सारे प्रसाद बनते हैं। तो उस चक्कर में जब हम बोलते हैं कि, मतलब अगर हमने मन में भी सोच लिया ना कि बहुत अच्छा प्रसाद बन रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, दैट मीन्स हमने उसको एक्सेप्ट कर दिया, और कृष्णा डज नॉट एक्सेप्ट इट। दिस इज व्हाट माय फर्स्ट लेसन वाज फ्रॉम निर्गुण माता जी, जो कि डीटी किचन की हेड है इस ऑफ कैलाश में। क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत नई थी, और मैंने उनको बोला जाके, माता जी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, फिर मेरे को उस दिन डांट भी पड़ी थी। राइट. तो हमें कोई भी चीज स्मेल नहीं करनी होती, बिकॉज वी डोंट हैव टू एक्सेप्ट इट आवरसेल्फ. वी आर नॉट द enjoyer. Krishna is the. Okay, thank you so much, Shivani Mataji. We really enjoyed your class, और we didn't see any mistakes. We just see कि आपकी बहुत डेडिकेशन है सिखाने में, और आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया हमें. और in future we want more of such opportunities, and we want to learn great many offerings for the Lord. So thank you so much, and thank you all the devotees. अभी जो भी कोई हमारी शॉर्टकमिंग्स रह गई हैं, we'll try to improve next time, and we will be sending all the recordings in the group, और all the ingredients in the group. और इसके अलावा शिवानी माता जी इज इन द ग्रुप. आपको कोई पर्सनल उनसे क्वेश्चन करने हैं, go ahead, you can call her, you can text her, you can email her, and we can send all the details of Shivani Mata ji also. She is quite accessible. आप सब उनसे पूछ सकते हैं. और अगर आपकी कोई गलतियां हैं, इस केक में नहीं अच्छा बन रहा, तो भी आप प्लीज क्रिएटिव क्लास में बुक में डालिए फोटोग्राफ्स, और माता जी उसको देखकर अपने आप भी, शी इज वर्किंग ऑल्सो, तो वो अपने आप भी आपको कॉल कर देंगी कि कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. तो हम लोग सब अपने जो भी, जब भी आप बनाए उसकी पिक्चर डालते हैं, तो हम धीरे धीरे करके जो गलतियां होंगी उसको इम्प्रूव करने के लिए ही आए हैं यहाँ पर. देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. वी कैन नेवर बी परफेक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. वी कैन नेवर बी परफेक्ट, सॉरी, वी कैन नेवर बी परफेक्ट इन कृष्णा सर्विस. कॉन्शियसनेस में तो परफेक्ट हो सकते हैं बाय मर्सी ऑफ गुरु. ठीक है. So thank you so much. I hope you like this class, and next class will be a jewelry making beads, jewelry making designing for the service of Radha Shyam Sundar. ठीक है. श्री श्री गौर निताई की जय. जय जय.